जी अस्सलाम वालेकुम third year it's your first lecture with me since this corona outbreak. So my name is Dr. Tahir Ibrahim and I am a consultant physician. So today we will be discussing with you uh, anemia, right? It's a very important topic and this is the brief outline of what we will be discussing today. We'll give you the definition of anemia, the overview of anemia, the causes of anemia, classification, and a bit of the dietary management, right? So, definition. There are three definitions you can see on this screen. Anemia is basically from a Greek word and it means anhema. Anhema, that means without blood. So it's the deficiency of the red blood cell एंड और हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल कम हो फिर भी एनीमिया कहेंगे, हीमोग्लोबिन कम हो फिर भी एनीमिया कहेंगे, और दोनों कम हो तो फिर तो डेफिनेटली एनीमिया. WHO की definition is a condition in which the hemoglobin content of the blood is lower than normal as a result of deficiency of one or more of essential nutrients regardless of the cause. असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके आरबीसी की मॉर्फोलॉजी पढ़ी हुई है आपने, फिजियोलॉजी सॉरी. सो उसमें आपको पता है कि आरबीसी प्रोडक्शन के लिए आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आयरन है, फोलिक एसिड है, B12 है. सो दीज आर दी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर. सो WHO की डेफिनेशन में जो है वो ये आता है कि देयर माइट बी the deficiency of one or more nutritional contents. But this is not a classical definition because sometimes there is no deficiency of the nutrients, but still you have anemia, right? One example is aplastic anemia, right? So this is not a true definition, right? So the last one, uh, which is most suitable, is that anemia is a state in which the level of the hemoglobin in the blood is below the reference range appropriate for the age and sex, right? That means that, for example, a newborn baby has got hemoglobin of say 18 or 19. So that is perfectly normal for his, age, right? And but in an adult, if it is 18, so we won't call it a normal. So anemia is the hemoglobin concentration which is below the reference range appropriate for age and sex. I would tell you in a few minutes that what is that appropriate level for the age and sex. Now, this is a general classification of anemias, right? And we have two definitions. One is according to the etiological grounds, यानी जो causes की वजह से different classifications हैं, और it is, and second one is according to the size of the RBC. MCV आपको पता है mean corpuscular volume, यानी कि size जो RBC का होता है वो हम measure करते हैं mean corpuscular. So ये definition दो classifications हैं, right? सो अकॉर्डिंग टू द इटियोलॉजी न्यूट्रिशनल हो सकती है, जैसे कि हमने बताया था कि विटामिन B12, आयरन, फोलिक एसिड, अगर इनकी डेफिशिएंसी है सो दैट वुड बी एनीमिया. सो दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशनल एनीमिया. aplastic anemia, that is aplasia, मीन के काम नहीं कर रहा, बन नहीं रहा बोन मैरो के अंदर आरबीसी. सो that is the cause of anemia. There is no nutritional deficiency, but still we have anemia. So that is aplastic. Anemia due to hemorrhage. Everything is normal, बन भी सही रहा है, न्यूट्रिएंट भी सारा कुछ है, लेकिन ब्लड लॉस हो गया, राइट? लॉस हो रहा है. वो एक्यूट ब्लड लॉस भी हो सकता है, वो क्रॉनिक ब्लड लॉस भी हो सकता है. एक्यूट ब्लड लॉस फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉमा हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया. क्रॉनिक जो है फॉर एग्जांपल किसी को पेप्टिक अल्सर है, उसमें से थोड़ा 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 खून निकल रहा है. So that is the blood loss. The fourth one is the hemolytic anemia, right? So
मोलिटिक ये है कि आरबीसीज बन भी रहे हैं, ठीक है, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन ब्रेक डाउन उनका जो है वो ज़्यादा हो रहा है। नॉर्मली आपको पता है कि 180 डेज का, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 180 डेज का लाइफ टाइम होता है आरबीसीज का। तो इसके बाद फिर वो दे स्टार्ट ब्रेकिंग अप, बट इन हेमोलिटिक एनीमिया दिस टाइम इज शॉर्टन अप, और उससे पहले ही आरबीसीज ब्रेक डाउन हो जाते हैं, देन रिजल्ट्स इन एनीमिया। सो दीज आर द 4 etiological classifications of anemia. Now according to the size, आप जब किसी पेशेंट को अनीमिया होता है तो आप उसका ब्लड मॉर्फोलॉजी रिक्वेस्ट करते हैं। ब्लड मॉर्फोलॉजी, वालेकुम अस्सलाम, ओके ओके, आई एम सॉरी, इट वाज 120 डेज, माय मिस्टेक। थैंक यू फैसल, आरिफ एंड शाइस्ता। So it is 120 not 180. Okay, so MCV जो है वो आप उसके साइज को जब देखते हैं तो आप जो है वो बताते हैं कि जी ये इसका साइज जो है नॉर्मल है, छोटा है, बड़ा है। वो कैसे मेजर करते हैं आप? वो आप फ्लेवोलीटर एक जो है वो यूनिट है जो कि आप मेजर करते हैं। नॉर्मल जो है वो 80 to 120 सॉरी 80 to 100 फ्लेवोलीटर is the normal size of the RBCs, right? So if this size is more than 100, we will call macrocytic RBCs. So that would be called macrocytic anemia, right? And if it is within the normal range, 80 to 120, 100 है, तो it would be a normocytic, यानी कि size normal है, यानी कि फिर भी anemia है. And if it is less than 80, we will call it a microcytic anemia. So here are the few causes of macrocytic anemia. आपको पता है कि अच्छा आरबीसी जब भी बनते हैं तो वो दे आर बिगर इन साइज, क्योंकि वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, मैरो के अंदर होते हैं. So once they get mature and they are thrown into the circulation, उनका साइज कम हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस गायब हो जाता है. न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसीज के अंदर, आपको पता है. सो मैक्रोसिटिक एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसीज हैं वो इमेच्योर फॉर्म में ही बाहर आ जाते हैं, इसलिए वो बड़े होते हैं साइज. सो दे आर बिगर इन साइज. ओके, और वो क्यों मेच्योर नहीं होंगे? आपको पता है कि मेच्योरेशन के लिए एडिक्वेट डीएनए बनना ज़रूरी होता है. सो दीज आर दी न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी. विटामिन B12, फोलिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर. इंट्रिंसिक फैक्टर आपको पता है कि ये रिक्वायर्ड होता है B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर मिल के जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं. तो इसलिए अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो फिर भी B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा, राइट? सो दीज आर द कॉजेज ऑफ मेगालोब्लास्टिक या मैक्रोसिटिक अनीमिया, राइट? हाइपोथायराइडिज्म एक डिजीज है जिसमें कि थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर. थायराइड हमारे गले के अगली तरफ एक ग्लैंड होता है जो सिक्रीशंस बनाता है, आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में. सो दैट इज कॉल्ड दी थायराइड. सो हाइपोथायराइडिज्म एक बीमारी है जिसके अंदर जो है वो इसका मतलब है कि थायराइड हार्मोन इज समहाउ और द अदर इज रिलेटेड विद द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी. ठीक है, इसमें भी मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है. अल्कोहलिज्म में क्या होता है? अल्कोहलिज्म में ये होता है कि जब आप पेशेंट अल्कोहल ले रहा होता है तो उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, ड्राउजी होता है, वॉमिटिंग होती हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट, एंड अगर वो ना भी हो तो जस्ट मेयरली बिकॉज ऑफ अल्कोहलिज्म यू वुड फाइंड मैक्रोसिटिक अनीमिया. इस तरह क्रॉनिक लिवर डिजीज में B12 आपको पता है बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा किधर डिपॉजिट होता है? लिवर के अंदर. ठीक है, तो अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज होगी तो B12 जो है वो डिपॉजिट ही नहीं हो सकेगा. तो इसीलिए क्रॉनिक लिवर डिजीज जो है दैट वुड कॉज दी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. फिर कुछ ड्रग्स हैं, हमने कहा है कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो रिक्वायर्ड होती है ताकि आपका सेल जो है आरबीसी वो मेच्योर हो सके. सो ऐसी ड्रग्स जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन के साथ इंटरफेयर करती हैं, फॉर एग्जांपल मीथोट्रेक्सेट, ज़िडुवडीन, ये 2 ड्रग्स हैं, एग्जांपल है. वो तो बहुत सारी और भी हैं जो कि डील करती हैं या इनहिबिट करती हैं डीएनए की रेप्लिकेशन को. सो
those drugs would cause maturation failure and ultimately macrocytic anemia. All right. Now we come to the normocytic anemia causes. Acute blood loss हो गया, ब्लड लॉस हुआ है तो जितना ब्लड यानी कि मैक्सिमम जा सकता है, काफ़ी जा सकता है, लेकिन अगर 1 से 2 यूनिट ब्लड लॉस हो जाए तो पेशेंट जो है ना वो अनीमिक हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए एक्यूट ब्लड लॉस है, क्रॉनिक डिजीज, इसे कहते हैं अनीमिया ऑफ क्रॉनिक इलनेस या क्रॉनिक डिजीजेस, ये भी नॉर्मोसिटिक नॉर्मोकेरोमिक अनीमिया होता है, राइट। इसी तरह बोन मैरो का फेलियर अगर है तो उसका भी जो अनीमिया है वो नॉर्मोसिटिक होगा। हेमोलिटिक अनीमियाज जितने भी हैं वो भी नॉर्मोसिटिक होते हैं यूजुअली, ठीक है ना। ये एक अलग बात है कि जो इमेच्योर सेल्स हैं दे आर मोर प्रोन टू, बिकॉज आपको पता है आरबीसीज जो हैं वो छोटी छोटी सी स्पेसेस में से उन्होंने गुजरना होता है, जैसे कि स्प्लीन के साइनोसाइड्स, लिवर के साइनोसाइड, सो वहाँ से वो उस वक्त गुजरते हैं जब उनका साइज जो है छोटा होगा और वो बाइकनकेव होंगे। लेकिन अगर वो लार्जर इन साइज होंगे जैसे कि मैक्रोसिटिक एनीमिया में होता है तो फिर उनका हेमोलिसिस ज़्यादा होगा। सो इसका मतलब है कि मैक्रोसिटिक एनीमिया कैन ऑल्सो लीड टू हेमोलिसिस, ठीक है ना। तो अगर मैक्रोसिटिक एनीमिया की वजह से हेमोलिसिस हो रहा है तो फिर साइज उनका बड़ा होगा, लेकिन अगर वैसे ही हेमोलिसिस किसी और वजह से हो रहा है तो फिर नॉर्मोसिटिक नॉर्मोकम। तो these are the normocytic anemia causes. Then we will come to microcytic, यानी कि जो साइज है लेस देन 80 फ्लेवोलीटर अगर है, so that would be the causes that would cause microcytic anemia. अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता है कि हीम जो होता है एक पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का और दूसरा ग्लोबुलिन, ग्लोबिन जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। सो अगर हीम सिंथेसिस डिफेक्ट है तो वो उसकी क्या कॉज होती है, आयरन डेफिशिएंसी, क्रॉनिक डिजीजेस, ये सारी हीम की जो सिंथेसिस है उस पर इफेक्ट करती हैं। ग्लोबिन जो है वो आपको पता है कि दीज आर दी दी प्रोटीन चेन्स जो होती हैं उन्हें ग्लोबुलिन ग्लोबिन कहते हैं। सो ये अगर अल्फा और बीटा चेन्स होती हैं आपको पता है, और अगर ये इनकी कोई प्रोडक्शन का डिफेक्ट हो तो उसको हम थैलासीमिया कहते हैं, वो आगे आपको बताऊंगा। So alpha thalassemia, beta thalassemia, right? So these are the causes of globin. So these are all iron deficiency, chronic disease, thalassemia. These are the causes, most common causes of iron deficiency is microcytic anemia. Then sideroblastic anemia भी एक चीज़ होती है जो कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है वो कॉज कर सकती है, सॉरी माइक्रोसिटिक अनीमिया कॉज। So this was the classification. Now अब मैंने सारा आपको बता दिया है, कॉजेज आपको खुद ही याद हो गई होंगी अभी तक, लेकिन we'll just enumerate them. So दो कॉज हो सकती हैं, एक तो ये है कि आरबीसीज की प्रोडक्शन या इनफेक्टिव है या डिक्रीज हो रही है, और दूसरा ये है कि आरबीसीज का रिमूवल ज़्यादा हो रहा है, बन सही रहे हैं लेकिन रिमूव ज़्यादा हो रहा है, राइट। सो causes due to ineffective production, iron, B12, folate deficiency, हाइपोप्लास्टिक मैरो, यानी कि मैरो जो है, बोन मैरो जो है वो उसको जितना एफिशिएंट होना चाहिए वो वैसा एफिशिएंट नहीं है, हाइपोप्लेजिया कहते हैं इसे, बोन मैरो का हाइपोप्लेजिया। इसी तरह माइलोडिस्प्लेजिया जो है ये एक आप समझ लें कि प्री मिलिग्नेंट सॉर्ट ऑफ या मिलिग्नेंट भी समटाइम्स के होते हैं। दीज आर दी कंडीशंस जिसमें कि जो आरबीसीज के जो प्रोजिनेटर्स होते हैं, आपको पता है कि आरबीसीज जो है वो प्रोजिनेटर सेल से बनता है जिसे स्टेम सेल कहते हैं। सो वो डिस्प्लास्टिक हो जाते हैं, यानी कि वो नॉर्मल नहीं होते हैं, सो इसको माइलोडिस्प्लेजिया कहते हैं। सो दैट इज आल्सो अंडर दी हेडिंग ऑफ इनफेक्टिव एरिथ्रोपोएटिन। फिर इन्वेजन ऑफ द फ्रैंकली मिलिग्नेंट सेल, कोई अगर बॉडी में कई मिलिग्नेंट सेल्स हैं, मिलिग्नेंसी है, कैंसर है, और वो ब्लड सर्कुलेशन के जरिए आके बोन मैरो के अंदर बैठ जाता है, सो वो जो मिलिग्नेंट सेल हैं वो रिप्लेस कर देते हैं प्रोजिनेटर सेल्स को, और वी विल बी हैविंग दी अनीमिया। रीनल फेलियर, आपको पता है कि एक चीज़ है जो कि आरबीसीज की प्रोडक्शन पे इफेक्ट करती है, एंड दैट इज एरिथ्रोपोइटिन, और एरिथ्रोपोइटिन किडनी से निकलता है, राइट। इसीलिए अगर किडनी फेलियर होगा, रीनल फेलियर होगा, किडनी के फंक्शंस डाउन हो जाएंगे तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा, और एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा,
सब कुछ मौजूद होगा, B12 भी, आयरन भी है, फोलेट भी है, बोन मैरो भी ठीक है, लेकिन एरिथ्रोपोएटिन नहीं है तो एनीमिया हो जाएगा. सो दैट इज द डिक्रीज और इनफेक्टिव. Chronic disease will itself affect the marrow, and RBCs will be produced in lesser amount. So these are the causes of ineffective manufacture. Normal marrow but increased removal, blood loss, hemolysis, hypersplenism. Blood loss का पता है, खून ज़ाया हो गया. Hemolysis, RBCs जो हैं वो उनकी half life short हो गई. Hypersplenism ये होता है कि spleen जो है वो it is a very large organ जिसके अंदर RBCs जो है उनका ब्रेकडाउन होता है. ठीक है. सो क्या होगा कि अगर स्प्लीन का साइज बढ़ गया है या हाइपरस्प्लेनिज्म है बिकॉज ऑफ एनी कॉज, क्रॉनिक मलेरिया है, कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज है, या एनीथिंग व्हिच विल कॉज मॉडरेट टू मैसिव स्प्लेनोमेगाली, दैट वुड कॉज द इंक्रीज आरबीसीज रिमूवल या हेमोलिसिस. सब डायग्नोज कैसे करना है? सबसे पहले हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डायग्नोसिस. उसमें आपने पेशेंट की डाइटरी हिस्ट्री लेनी है. ठीक है. डाइटरी हिस्ट्री में आयरन इनटेक, विटामिन B12, फोलेट, ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से आती हैं, ये इसके जो सोर्स हैं आयरन का, फॉर एग्जांपल मीट इज़ अ वेरी बिग सोर्स ऑफ आयरन. इसी तरह फोलेट्स जो हैं वो भी फलों में होते हैं और मिल्क में होते हैं. B12 जो है वो भी मीट में होता है और फिश में होता है, लिवर में होता है, ये जो कलेजी वगैरह आप खाते हैं. सो देखना है कि पेशेंट जो है वो कहीं जो है वो वेज तो नहीं, बिल्कुल ही सब्जियों पे तो नहीं. अगर वो है इसका मतलब है कि फिर उसको डेफिशिएंसी होगी और एनीमिया. सो डाइटरी हिस्ट्री लेना बड़ा ज़रूरी है. मेडिकेशन का जैसे मैंने जिक्र किया कि मीथोट्रैक्सेट है, ज़ेडुओडिन है, बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि विटामिन ये DNA के इनहिबिशन करती हैं और अल्टीमेटली एनीमिया. इसी तरह ड्रग्स में फिर NSAIDs आते हैं. NSAID इज नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स. सो ये जाके स्टमक की लाइनिंग को ब्रेक करते हैं और पेप्टिक अल्सर्स बन सकते हैं. पेप्टिक अल्सर आपको पता है भी थोड़ा 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 ब्लड लॉस होता रहता है, क्रॉनिक जे ब्लॉक. सो हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है कि NSAIDs पे तो नहीं है, स्टीरॉइड्स तो नहीं ले रहा. स्टीरॉइड भी GI इरिटेशन करते हैं. ठीक है ना. सो मेडिकेशन हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. Possible exposure to chemical or toxins. There are certain chemicals or toxins, yeah, radiation sometimes they would directly affect the marrow, right? और marrow को वो जाके inhibit कर देते हैं और इसी तरह इसीलिए फिर जो RBCs हैं उनकी प्रोडक्शन नहीं होती. लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी marrow फेलियर होगा तो उसमें सिर्फ RBCs अकेले नहीं अफेक्ट होंगे, उसमें दूसरी सेल लाइंस भी इफेक्ट होंगी जिसमें कि WBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं. ठीक है ना. सो ये हिस्ट्री केमिकल और इसमें जो उसका जो प्रोफेशन है या ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट. ड्यूरेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ सिम्टम्स. फिर सिम्टम्स आपने पूछते हैं. इसमें ये होता है कि आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट कि जैसे कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल काम करता है, इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर खून का काम होता है. यानी अगर पेट्रोल नहीं होगा, कम होगा, तो गाड़ी झटके मारती है या तो उसमें प्रॉब्लम होती है. इस तरह अनीमिया की वजह से बॉडी के सारे पार्ट्स अफेक्ट होते हैं. ठीक है. टायर्डनेस क्यों होती है? क्योंकि मसल्स जो हैं वो कमज़ोर होते हैं तो टायर्डनेस की फीलिंग होती है. मसल फटीग, वीकनेस, हेडेक और वर्टिगो, कि आपकी जो सेरिब्रल वो जो फंक्शनिंग है जिसे हम सेरिब्रेशन कहते हैं वो भी अफेक्ट होती है. सो इसी तरह हेडेक, वर्टिगो होगा. डिस्निया क्यों होता है कि RBC जो आपको पता है कि दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, राइट. हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन लग के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती है. तो इसलिए जब अगर हीमोग्लोबिन कम होगा या RBCs कम होंगे तो ऑक्सीजन कम जाएगी. जब ऑक्सीजन कम जाएगी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में तो वो दे वुड फील डिस्निया इसलिए होगा कि उनको उनके अंदर प्रॉपर उसकी रेस्पिरेशन नहीं होगी प्रोडक्ट्स. ठीक है ना. सो बंदा जो है वो डिस्निक फील करेगा, ज़्यादा बंदा तेज तेज सांस लेगा ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आए. सो डिस्निया की जो फीलिंग है और स्पेशली ऑन एक्सर्शन, बैठे हुए आप
एट रेस्ट कुछ नहीं होता, एक्सर्शन पे हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, सही। सो दिस इज़ वन ऑफ दी सिम्टम ऑफ अनीमिया। जीआई प्रॉब्लम जो है वो अनीमिया की वजह से भी हो सकते हैं और जीआई प्रॉब्लम की वजह से भी अनीमिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को इसोफेजियल वेब्स हैं, ठीक है, इसोफेजियल वेब्स आपने पढ़े होंगे कि ये कंजेनिटली प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें फिर उसको प्लूमर विंसन सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें कि फिर जाके आपकी जो इसोफेगस है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसोफेजाइटिस होता है, इसोफेजियल वेब्स होते हैं, तो दैट वुड कॉज इसोफेजाइटिस के बाद जख्म बनेगा वहाँ पर, फिर वहाँ से ब्लड लॉस होगा। सो जीआई प्रॉब्लम्स कैन बी द कॉज ऑफ अनीमिया। इसी तरह अनीमिया कैन बी द कॉज ऑफ जीआई प्रॉब्लम, ठीक है। ओवर्ट साइन ऑफ ब्लड लॉस, फॉर एग्जांपल अगर किसी को एनी ऑरिफिसेस ऑफ द बॉडी, फीमेल है, उनको जो उनके मंथली साइकिल्स होते हैं उनमें अगर कोई डिस्टर्बेंस है, उनको हैवी ब्लीडिंग हो रही है जिसको कि हम मेनोरेजिया कहते हैं, सो दैट वुड बी द कॉज ऑफ ब्लड लॉस। इसी तरह किसी को अगर हेमोप्टाइसिस हो रहा है, बलगम के जरिए खून आ रहा है, या हेमेटेमेसिस हो रहा है, उल्टी के जरिए खून आ रहा है, या कुछ लोगों को रिकरेंट एपिस्टेक्सिस होता है, उनकी जो नाक है उसमें से ब्लड आता है रिकरेंट, सो उसको भी हम जो है वो ब्लड लॉस में काउंट करते हैं। सो ये हिमोचूरिया है, यूरिन में आ रहा है ब्लड, सो ऑल दीज ब्लड लॉस हिस्ट्री शुड बी टेकन फ्रॉम द पेशेंट, राइट। अगर स्टूल में उसको ब्लड है, किसी को पाइल्स का मसला है जिसे बवासीर कहते हैं, उसमें पखाने के साथ खून आता है, ब्लीडिंग होती है, तो पाइल्स की हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन आफ्टर द हिस्ट्री द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने देखना है कि हेपेटोस्प्लेनोमेगाली क्यों होती है। हेपेटोस्प्लेनोमेगाली क्योंकि आपको पता है जब ब्लड लॉस होता है तो आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी है, उसमें जो आपका जो ब्लड है वो कहाँ कहाँ बनता है, सिर्फ मैरो में नहीं बनता, वो लिवर में भी बनता है, स्प्लीन में भी बनता है, वो आपके साइनोसाइड्स जो है उनमें भी बनता है, और ऑलमोस्ट, तो इसीलिए जब अनीमिया होता है तो वो बोन मैरो जो है जब उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है ब्लड बनाने की, तो ये दोनों जो हैं ब्लड आरबीसी लिवर और स्प्लीन ये टेक ओवर कर लेते हैं कि हम बनाएंगे खून, इसी वजह से ये बड़े होते हैं। हेपेटोस्प्लेनोमेगाली होती है। हार्ट एब्नॉर्मेलिटीज, हार्ट एब्नॉर्मेलिटीज में आपके हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, सो पेशेंट कैन हैव कार्डियक फेलियर, उसको हो सकता है, ठीक है। इस तरह जब हमारा जो स्किन का जो कलर है वो ब्लड की वजह से होता है, तो अगर ब्लड कम होगा तो पेलर होगा स्किन का, और वो कहाँ कहाँ देखते हैं आप अपने पामर क्रीजेस में देखते हैं, आप अपने कंजंक्टिवा में देखते हैं, सबलिंगुअल यानी जुबान के नीचे देखते हैं, सो ऑल दीज प्लेसेस विल बी पेल, राइट। अच्छा, अब कुछ ऐसी फिजिकल फाइंडिंग्स हैं जो कि आपको अंडरलाइंग कॉज का पता बताती हैं कि अगर वो फाइंडिंग मिले तो आप एक खास कॉज बसो। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी को कोई न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हैं, किसी को पिन प्रिक की सेंसेशन नहीं आ रही, पोजीशन सेंस गायब हो गई है, उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स उसको आ रहे हैं, साइंस आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा शो करता है कि बंदे को मेल न्यूट्रिशन है या स्पेशली B12 डेफिशिएंसी, ठीक है ना। B12 डेफिशिएंसी का ताल्लुक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स से होता है, याद रखें। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपकी जो टंग है वो स्मूथ हो जाती है, यू कैन हैव फिशर्स एट द एंगल ऑफ द माउथ, जिसे स्टोमाटाइटिस कहते हैं, आपकी ज़ुबान सूज सकती है या रेड हो जाती है, ठीक है। सो इसी तरह इसोफेजियल वेब्स का मैंने बताया कि इसोफेगस का जो ओपनिंग होती है उसके ऊपर झिल्ली सी आ जाती है, जिसको कि इसोफेजियल वेब्स कहते हैं। पेशेंट जो है वो आपको डिस्फेजिया के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो ये आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। हेमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है आपको पता है, जब ब्लड हेमोलाइज होता है या ब्रेक डाउन होता है तो अल्टीमेटली बिलीरुबिन बनता है थ्रू अ प्रोसेस जो कि आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में। सो बिलीरुबिन जो है वो ब्लू येलो कलर का होता है, येलोइश ग्रीन। सो उसकी वजह से जो आपका जो स्क्लेरा है, या जो अगर बहुत सीवियर है तो आपकी जो स्किन है
वो येलो हो जाती है, उसको हम जॉन्डस कहते हैं। सही है। सो अगर जॉन्डस है और साथ में एनीमिया है तो वी विल लुक फॉर हेमोलिटिक एनीमियास, राइट। ना ये जो मैंने बताया था कि जो डेफिनेशन थी कि जी एज कितनी हो तो उसका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। ये अगर एडल्ट मेल है तो उसका हीमोग्लोबिन लेस देन 13 है, या उसका पैक सेल वॉल्यूम आपको पता है कि जब आरबीसी जब ब्लड होता है उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसके नीचे जो है वो आरबीसी जमा हो जाते हैं और ऊपर जो है वो प्लाज्मा आ जाता है। तो जो नीचे वाला पोर्शन है उसको जो हम मेजर करते हैं उसको पैक सेल वॉल्यूम कहते हैं। सो 39% से कम अगर हो पीसीवी या 13 से कम हो हीमोग्लोबिन तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। एडल्ट फीमेल अगर नॉन प्रेग्नेंट है उसमें ये वैल्यू 12 और 37। अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें थोड़ा सा 11 और 33। क्यों? क्योंकि थोड़ा जो फीमेल होती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस प्लाज्मा या वाटर जो है वो रिटेन होता है, इसीलिए आपको देखा कि वाटर उनकी बॉडी में बढ़ जाता है, वो मोटी हो जाती है। तो इसीलिए डाइल्यूशनल हो जाती है। सो डाइल्यूशन की वजह से आपको प्रॉपरली एचबी की मेजरमेंट नहीं होती है। सो अगर 11 से कम है प्रेग्नेंट फीमेल में हीमोग्लोबिन या 33 से कम उसका पीसीवी है तो फिर हम कहेंगे ये एनीमिक। बच्चे अगर 6 to 59 मंथ्स उनकी एज है तो उनमें भी प्रेग्नेंट फीमेल वाला ही है 11 से 33। ठीक है। 5 साल की उम्र बनती है तकरीबन ये, यानी 6 महीने से 5 साल के बच्चे के जो हीमोग्लोबिन है वो 11 से कम हो तो हम उसको एनीमिक कहेंगे। 5 से 11 साल का जो बच्चा है उसमें 11.5 से कम हो और पीसीवी 34 हो, और इसी तरह 12 से 14 साल का बच्चा है उसमें 12 से कम अगर है तो फिर हम कहेंगे कि जो है वो आपके अनीमिया है। नाउ विल डिस्कस डिफरेंट एनीमियाज इन डिटेल्स। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के क्लिनिकल सिम्टम मैंने बताया, पैलर होगा। सेकंड मोस्ट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग जिसे ग्लोसाइटिस कहते हैं, ठीक है ना। किलोसिस या चिलाइटिस किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो एंगल ऑफ द माउथ हैं उसके ऊपर थोड़े थोड़े से जख्म होते हैं वाइट वाइट से, और क्रैक्ड जिसे हम क्रैक्ड लिप्स कहते हैं या क्रैक्ड माउथ कहते हैं। सो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से हो सकते हैं, ठीक है ना। और उन लोगों को सर्दी ज़्यादा लग सकती है, बट इतना हार्डकोर साइन नहीं है ये, लेकिन फिर भी जस्ट टू मेंशन। वीकनेस, फटीग, muscle weakness, dyspnea, these are all the features of anemia, but specific इसमें जो iron deficiency से related दो चीज़ें ही हैं, एक ग्लोसाइटिस और किलाइटिस, ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस में क्या करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की? आप कंप्लीट ब्लड पिक्चर, उसमें आप हीमोग्लोबिन देखेंगे, उसका एमसीवी देखेंगे जो कि लो होगा, एमसीएच देखेंगे एंड ऑल दैट। आयरन स्टडीज, इसमें आपने सीरम फेरेटिन लेवल्स चेक करने, टोटल आपकी जो आयरन के स्टोर्स हैं बॉडी के वो ये बताएगा, और आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बताएगा, यानी कि ब्लड की जो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और फेरेटिन लो हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपको अगर कॉज डिटरमिन करनी है, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर की डिजीज़ है या क्रॉनिक उसके लोअर जीआई में से ब्लड जो है वो जा रहा है, कोई इसको कैंसर है लोअर जीआई ट्रैक का, कोलन का कैंसर है, या उसको कोई अपर जो है वो स्टमक का कैंसर है, तो फिर आप एंडोस्कोपी या क्लोनोस्कोपी। एंडोस्कोपी ये होती है कि आप इसको बेसिकली गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। इसका मतलब है कि उसमें आप एक कैमरे के ट्यूब के जरिए जाके मुंह के थ्रू एसोफेगस, फिर स्टमक और फिर ड्यूडिनम वगैरह तक देख लेते हैं। सो इसको हम कहते हैं ओरो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, ओजीडी जिसे कहते हैं, या दूसरे लफ्जों में एंडोस्कोपी जिसे हम कहते हैं। सो अगर लोअर पार्ट में है तो रेक्टम के जरिए आप उस ट्यूब को डालते हैं रेक्टम में, और फिर आप जाके उसका लार्ज गट पूरी देखते हैं, फिर स्मॉल गट देख लेते हैं, आप टेक आइलियम वगैरह तक आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी जो अपर वाली है वो ड्यूडिनम तक ही यूजुअली आप देखते हैं, ठीक है। अब ये आयरन डेफिशिएंसी होती क्यों है? वन इज इनटेक कम हो गया आयरन का, दूसरा ये है कि एब्जॉर्प्शन, आयरन
डाइट में ठीक है लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो गई, आप खा रहे हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तीसरा ये है कि आप खा भी रहे हैं, एब्जॉर्ब भी हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी को ज़रूरत ज़्यादा की आयरन की है, जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना, फिर उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी होती है। और तीसरी चीज़ ये है कि सब चीज़ें ठीक हैं बिल्कुल, लेकिन लॉस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये 4 मेजर कैटेगरी हैं जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कॉजेज़ को बताती हैं। ओके, सो इनटेक वेजिटेरियंस हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल गोश्त खाते नहीं है, हिंदू जैसे, या हमारे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गोश्त नहीं खाते हैं। सो डाइटरी पुअर है, पॉवर्टी है, इग्नोरेंस है, पता ही नहीं है कि जी गोश्त में आयरन ज़्यादा खाना चाहिए या। इसी तरह आपके फोलेट और बी विटामिन सी का इंटेक कम है। विटामिन सी जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन में, तो इसीलिए विटामिन सी का जो इंटेक है, और विटामिन सी आपकी जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनमें होता है। फैड डाइट्स जो होती हैं ये कुछ जिसे कि हम जैसे कि टैबूज होते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, या जिस तरह जिसको कि आप कहते हैं बर्गर शर्गर्स ये वो चीज़ें। सो बेसिकली जंक फूड जो है ये, सो डाइटरी से एक। दूसरा ये है कि आप खा रहे हैं लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रही, क्यों? एब्जॉर्प्शन इसकी सिर्फ 5%, जितना भी आप आयरन लेते हैं तो उसका 5% हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, बाकी 95% स्टूल के जरिए पास हो जाता है। अब जो पुअर एब्जॉर्प्शन है वो इस वजह से हो सकती है कि लेस नॉन हीम हीम आयरन है, ठीक है ना। नॉन हीम आयरन जो है वो उसके जो है वो हीम आयरन बेसिकली जो है वो मेजर सोर्स होता है। अगर नॉन हीम आयरन जो है जैसे फेरिक आयरन जो होता है वो आप कम ले रहे हैं तो फिर भी आपकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। विटामिन सी का मैंने बताया था कि ये आपके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कुछ आपकी डाइट में ऐसे चीज़ें आप खा लेते हैं जो कि उसकी एब्जॉर्प्शन को आयरन की, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो फाइबर ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, सो फाइबर जो है ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करता है, ठीक है। इसीलिए अगर आपने आयरन खाना है, आपने फाइबर लेना भी है, तो उसको आप एम्प्टी स्टमक लें, रात को सोते हुए आप इसबगोल वगैरह ले लेते हैं, या फिर आप उसको थोड़ा टाइम रखें। अगर आपने गोश्त खाया है तो उसके फ़ौरन बाद आपने फाइबर नहीं ले लेना, ठीक है, ताकि अच्छी एब्जॉर्प्शन। इसी तरह ऑक्सीलेट्स, चावलों में ऑक्सीलेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फाइटेट्स जो हैं ये कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनके अंदर फाइटेट होते हैं, तो दीज आर दी इनहिबिटर्स ऑफ आयरन। सॉरी, एक्सेसिव टी जो है या कॉफ़ी जिसमें कि टेनिन होता है ये भी एब्जॉर्प्शन कम करता है। फॉस्फेट और कैल्शियम जो है एग्स और मिल्क में जो होता है, तो ये भी कम करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन। मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, आपको पता है स्मॉल गट के बहुत सारी डिजीज होती हैं जो मेल एब्जॉर्प्शन कॉज करती हैं। सो आपकी जो आयरन है वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड करता है और आके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, सही है, जर्जिनल में एब्जॉर्ब होता है। तो इसलिए अगर इंस्टाइनल डिजीज़ है या मेल एब्जॉर्प्शन है तो फिर भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसी तरह ड्रग्स का मैंने आपको बताया था कि एनएसएड्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है। फाइका जो है ये एक सिंड्रोम है जिसमें कि आपका जो है वो पर्सन जो है वो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है आयरन की उसमें वो कंप्रोमाइज्ड होती है, ठीक है। अब इंक्रीज डिमांड कि आयरन जो है वो ज़रूरत ज़्यादा है, मसलन अगर फीमेल प्रेग्नेंट है या बच्चे को फीड करवा रही है तो उसको अपने लिए तो आयरन चाहिए चाहिए, उसको बच्चे के लिए भी चाहिए। सो इसलिए डिमांड ज़्यादा है, अगर आप उस डिमांड को फुलफिल नहीं करेंगे तो आयरन डेफिशिएंसी नहीं में हो जाएगा, राइट। रैपिड ग्रोथ की जो पीरियड्स हैं, जैसे कि बच्चा जब इन्फेंसी में होता है, ठीक है ना, सो उसको हम, या चाइल्डहुड में होता है या एडोलेसेंट, ये 3 चीज़ें हैं जिसमें कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है आयरन, ठीक है। फीमेल एथलीट्स ये भी ज़्यादा इनको ज़रूरत होती है आयरन। आयरन का लॉस जो है वो नॉर्मली 1 मिलीग्राम पर डे जो है लूज होता है। मेंस्ट्रुएशन में 2 ग्राम लूज होता है।
सो अगर एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस है, मेनोरेजिया है या रिपीटेड प्रेगनेंसीज हैं, IUCDs कहते हैं इंट्रा यूट्राइन जो है वो डेथ जो है वो एम्ब्रियोज यानी बच्चा जो है वो अंदर ही उसकी डेथ हो गई है, IUCDs जो हैं वो। इसके अलावा IUCDs जो हैं इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी कहते हैं। तो वो जो हैं बेसिकली मेनोरेजिया कॉज करती हैं। इस तरह वर्म्स जो हैं वो जाके इंटेस्टाइन के साथ हुक कर जाते हैं और वहाँ से खून चूसते रहते हैं, स्पेशली द हुक वर्म्स। सो ये वायर लॉस होगा। इसी तरह हुक वर्म इन्फेस्टेशन और पेप्टिकल्स, ब्लीडिंग पाइल्स। मलेरिया में ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाता है, आयरन जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। इस तरह TB में है, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, सर्जरी, ये दीज आर द कॉजेज ऑफ ब्लड लॉस। ठीक है। अब क्या बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं अनीमियाज के? प्रेग्नेंट फीमेल में प्रीमेच्योर चाइल्ड बर्थ हो सकती है, सेल बच्चों की डेथ हो सकती है न्यूनेटल पीरियड में, इन्फेंट और मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, इंडिविजुअल विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस। सो 3 जगहों पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, प्रेगनेंसी में, फिर इसी तरह इन्फेक्शंस जिन लोगों को ज़्यादा होती हैं वो भी बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी हो सकती हैं, वर्क कैपेसिटी बंदे की कम हो जाती है। अब मैनेजमेंट जो है वो आपने 2-3 चीज़ों से करनी है। सबसे पहले तो ये कि अंडरलाइन कॉज को पकड़ें, आप आयरन को रिप्लेस करें। कि जितना आयरन निकल गया बॉडी में से उसको आपने या ओरली रिप्लेस करना है या फिर पारेंटरली यानी कि IV या इंट्रामस्कुलर। डाइट में जो चीज़ें मैंने बताई हैं जिनमें कि ज़्यादा आयरन होता है वो चीज़ें आपने ज़्यादा खिलानी है, जैसे गोश्त हो गया, दूध हो गया, और इसी तरह लिवर है मुर्गी का की कलेजी या बकरे की कलेजी, ये चीज़ें जो हैं इनमें ज़्यादा आयरन होता है। इस तरह ड्रग थेरेपी, अब आयरन जो है वो ओरल फॉर्म में जो है वो अवेलेबल है और एसिडिक एनवायरनमेंट में बेस्ट एस्केप ऑप्शन होती है। ठीक है ना। इसीलिए आपको फिर जब आप आयरन ले रहे हो तो उसके साथ आपको एंटासिड्स नहीं लेना चाहिए। मतलब किसी को अगर डिस्पेप्सिया है तो आप आयरन भी डॉक्टर ने दे दिया खाने के लिए, तो आप उसको ज़रा गैप दे दें आयरन की इंटेक को और एंटासिड। ठीक है। और आयरन जब आप देते हैं तो पेशेंट को GI इफेक्ट्स होते हैं, डिस्पेप्सिया, डोमिनल पेन वगैरह वगैरह। पेरेंटल आप पेशेंट को IM भी दे सकते हैं और IV भी दे सकते हैं। ठीक है ना। कोशिश करनी चाहिए कि ओरली बंदे का जो है ना ब्लड वो ओरल रिप्लेसमेंट से ठीक हो जाए, क्योंकि IV और IM जो हैं इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आयरन की जो ट्रीटमेंट है वो 2 से 3 महीने के लिए आपको देनी होती है रिप्लेसमेंट, ताकि आपके आयरन स्टोर, स्पेशली अगर ओरली आप दे रहे हैं, रिप्लेस हो जाएं, आपके रिप्लेनिश हो जाएं जो स्टोर्स हैं। ये आप देखें कि these are the guideline for oral iron and folate for severe anemia. अगर लेस देन 2 years एज है तो 25 मिलीग्राम आयरन और 100 to 400 फोलिक एसिड डेली देना है 3 महीने के लिए। 2 से 12 साल में 60 मिलीग्राम आयरन डेली और 400 मिलीग्राम फोलिक माइक्रोग्राम फोलिक एसिड डेली फॉर 3 मंथ। एडल्ट्स में, एडोलेसेंट में, प्रेग्नेंट फीमेल में आपने 120 मिलीग्राम आयरन और 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड डेली देना है। ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग 3 months ऑफ सप्लीमेंटेशन, प्रेग्नेंट women infant should continue। ठीक है ना, बाकी लोगों को बंद कर देना। अब डाइटरी सोर्सेज ये बता रहा है हीम आयरन और नॉन हीम आयरन जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं आयरन के। हीम आयरन जो है वो बेटर एब्जॉर्ब होता है, 20 to 30% होता है, और ये लिवर में यानी कलेजी, जो बकरे की कलेजी खाते हैं आप या मुर्गी की कलेजी खाते हैं, मीट में कोई भी मीट है, मैक्सिमम जो है वो आपको बीफ में होता है और बीफ के भी शोल्डर वाले पार्ट में होता है। इसी तरह इसके अलावा फिर रेड मीट जो है जिसमें कि बकरे का गोश्त हो गया और
वाइट मीट में आपका भी आयरन होता है लेकिन कम होता है, चिकन में, फिश में, पोल्ट्री, फिश, ये सब चीज़ें होती हैं। अब नॉन हीम आयरन जो है ये भी आयरन है लेकिन इसकी एब्जॉर्प्शन कम होती है, 1 to 10% एब्जॉर्ब होता है, बाकी सारा निकल जाता है। और ये वेजिटेबल्स में होते हैं, फॉर एग्जांपल सीरियल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक हो गया, मेथी हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। लेग्यूम्स जितने आपकी पल्सेस हैं, दालें वगैरह जो हैं, नट्स हैं, जेगरी एंड ड्राई फ्रूट्स जितनी भी हैं, इन सब में ये नॉन हीम आयरन जो है वो काफ़ी मिकदार में होता है। इसी तरह बायो अवेलेबिलिटी भी नॉन हीम की पुअर होती है। सिग्निफिकेंट amount of iron may be derived or obtained from food cooked in iron vessels. पहले ज़माने में लोग जो है वो ये पतीलियों में जो खाना बनाते थे, जो पॉटरी होती थी वो आयरन की या उसकी बनी हुई होती थी। आजकल जो है वो लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो इस तरह के बर्तनों में खाना नहीं बना रहे, तो वहाँ से भी आपको आयरन मिल सकता है। अब वी कम टू दी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जो है आरबीसी साइज बड़ा होगा और दो कॉमन कॉजेज कोबालामीन और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। कोबालामीन इज डेफिशिएंसी इज आल्सो नोन एज पर्नीशियस एनीमिया, और B12 डेफिशिएंसी जो है इज एन इम्पॉर्टेंट वाटर सॉल्युबल विटामिन, इट्स अ वाटर सॉल्युबल। इंट्रिंसिक फैक्टर ये रिक्वायर्ड होता है कोबालामीन। सो तीनों जो हैं ये कॉज कर सकती है मेगालोब्लास्टिक। अब अगर गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो है वो उसका जो पार्ट जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर बनाता है, आपका जो पार्ट है जो स्टमक का जहाँ से ये इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है, अगर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएं जिसको कि हम पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो वो इंट्रिंसिक फैक्टर बनाने वाला पार्ट है स्टमक का वो डैमेज हो जाता है। सही है। सो म्यूकोजल गैस्ट्रिक म्यूकोजा नॉट रिक्रूटिंग इंट्रिंसिक फैक्टर। जीआई सर्जरी हो गई, आपने जो है वो स्टमक जो है उसके अंदर कैंसर था या बहुत बड़ा पेप्टिक अल्सर था, आपने उसको रिमूव कर दिया या ट्रॉमा, सो वो GI-IF प्रोड्यूस करने वाला गैस्ट्रिक म्यूकोजा ही निकाल दिया आपने। इसी तरह H2 रिसेप्टर इंटेगोनिस्ट ब्लॉकर, जिसमें कि आपकी जो है वो पोमेटाडीन है, रेनेटाडीन है, ये जितने भी H2 ब्लॉकर्स हैं, लॉन्ग टर्म अगर आप देते हैं किसी पेशेंट को, सो वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की एट्रोफी कॉज कर देते हैं। ठीक है। इस तरह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, उसमें मतलब जो सोर्सेज हैं इसके वो बंदा खा नहीं रहा। फिर कुछ रेयरली हेरिडिटरी डिफेक्ट्स होते हैं कि कोबालामीन जो है ना वो यूटिलाइज नहीं हो सकती बॉडी में। इसके भी कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया था, पैरास्थीजियाज और ऑल्टर्ड थॉट प्रोसेस, कंफ्यूजन, डिमेंशिया, यानी कि इसके जो मेंटल इफेक्ट्स हैं या न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। डायग्नोसिस में आप विटामिन B12 और फोलेट के लेवल्स रिक्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह आप इंट्रिंसिक फैक्टर के जो एंटीबॉडीज, एंटी प्राइटल सेल्स जो होते हैं वो बनाते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर को, तो एंटी प्राइटल सेल एंटीबॉडीज आप रिक्वेस्ट करते हैं, वो फिर आपको बताती हैं कि पेशेंट को जो है वो पर्नीशियस एनीमिया है या नहीं है। शिलिंग टेस्ट एक पहले इस्तेमाल होता था, आजकल नहीं होता। उसमें आप चेक करते हैं कि जी B12 लेवल्स कैसे हैं। अब ट्रीटमेंट यही है कि पारेंट्रल आप उसको कोबालामीन दे दें। डाइट जो अनीमिया की जो कि खास तौर पर फोलेट, B12 हैं, वो आप दें उसको। इंट्रानेजल फॉर्म भी आ गई है इसकी, नेजो कोबाल जिसे हम कहते हैं, ये आप दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम ओरल फॉर्म में देते हैं मेथिकोबाल के नाम से, यानी कि मेथिकोबालामीन जो है या मिकोबालामीन जो है, एकोबालामीन, ये आप देते हैं। इसी तरह फोलेट की जो है वो इंसीडियस इन ऑनसेट, यानी कि फोलेट के जो बॉडी के अंदर स्टोर हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसकी बहुत इंसीडियस होती है और इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होते, ये याद रखें। ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा लेकिन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं होंगे। इस तरह फोलेट आप देते हैं तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है। और क्या फोलिक एसिड के सोर्सेज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लिवर,
मशरूम्स, ओट मील्स, ये जो आप खाते हैं, सीरियल्स वगैरह खाते हैं, पीनट बटर्स या रेड बीन्स, दे आर ऑल गुड सोर्सेज ऑफ फोलेट्स। फिर हमने कहा था कि थैलेसीमिया जो है वो एक बीमारी है जिसमें कि माइक्रोसिटिक एनीमिया। सो क्या है ये थैलेसीमिया? इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें कि जो आपकी जो हीम और ग्लोबिन होता है ना, तो ग्लोबिन की जो चेन है वो नॉर्मल नहीं होती। तो अगर अल्फा चेन का डिफेक्ट होगा तो अल्फा थैलेसीमिया होगा, अगर बीटा का होगा तो उसे बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। तो यूजुअली ये मेडिटेरेनियन एथनिक ग्रुप में होता है, हमारे यहाँ भी बहुत कॉमन है ये पेशेंट जो है एसिम्प्टोमेटिक होता है, और यूजुअली अगर पेशेंट जो है वो उसको डिफेक्ट उसका इतना स्वीयर नहीं है, उसको कहते हैं बीटा थैलेसीमिया ट्रेट या फिर बीटा थैलेसीमिया माइनर। ठीक है, इसमें ये होता है कि जो जो आपके क्रोमोसोम्स हैं जो इसको डिपिक्ट करते हैं कि कैसी बननी है चेन, अगर वो दोनों ही खराब हैं, दैट मीन्स के उसको थैलेसीमिया मेजर है, और फिर वो अल्टीमेटली रिटार्डेशन होती है और डेथ हो जाती है, रिपीटेड उसको ट्रांसफ्यूजन देने पड़ते हैं। लेकिन अगर एक बिल्कुल ठीक है दूसरा खराब है, उसको कहते हैं हम थैलेसीमिया ट्रेट। थैलेसीमिया ट्रेट में जो पेशेंट होता है वो उसके अंदर थैलेसीमिया मौजूद होता है, खुद उसको कुछ भी नहीं होता, थोड़ा बहुत उसका ब्लड कम होता है, लेकिन ये थैलेसीमिया माइनर जो हम कहते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि अगर उसकी शादी किसी ऐसी बंदे से या बंदी से हो जाए जिसके अंदर थैलेसीमिया ट्रेट है, तो फिर चांसेस होते हैं कि जो उनके बच्चे पैदा होंगे उनमें थैलेसीमिया मेजर होगा, यानी कि वो उनको रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होगी, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। अभी लॉ भी बन रहा है, लेकिन जब तक लॉ नहीं बनता तो आई थिंक वी शुड गिव इट अ मैसेज, स्पेशली कज़न मैरिजेस में ज़रूर ये टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। मेजर थैलेसीमिया जो है इसमें फिर ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, और आपको पता है जब रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो आयरन का ओवरलोड हो जाता है इनकी बॉडी के अंदर, इसीलिए हम आयरन IV डेस्प्रोक्सामीन देते हैं, एक्सेसिव आयरन तक इनकी बॉडी से निकल जाए। क्रॉनिक डिजीज़ का जो है वो अंडर प्रोडक्शन होती है RBCs की, और इनका सर्वाइवल रेट कम हो जाता है, इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज। और किसी भी सस्टेन डिजीज़ के 1 से 2 महीने के बाद ये काम शुरू होता है क्रॉनिक डिजीज़ वाला। और कौन कौन सी डिजीज़ हैं? क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया, इन्फेक्शन, TB हो गई, मेलिग्नेंसी, क्रॉनिक लिवर डिजीज़, स्प्लेनोमेगाली है, हेपेटाइटिस है, सो ऑल दीज आर द क्रॉनिक कॉजेज। अब एप्लास्टिक एनीमिया, इसमें मैंने बताया था कि सिर्फ RBCs नहीं जाते, पैनसाइटोकिनिया पे सारे के सारे सेल्स चले जाते हैं, सो RBCs, WBC, प्लेटलेट सारे चले जाते हैं। मैरो को जब आप देखते हैं तो आपको नॉर्मल मैरो जो है ना उसके अंदर आपको सारे प्रोजेनेटर्स नजर आते हैं, RBC के स्टेम सेल नजर आएंगे, WBC के स्टेम सेल नजर आएंगे, नॉर्मल मैरो की बात कर रहा हूँ, और इसी तरह प्लेटलेट के मेगा कैरियोसाइट्स नजर आते हैं। लेकिन इस केस में हाइपोसेलुलर मैरो होता है, यानी कि सेल्स जो हैं वो उसके वो नजर नहीं आते हैं हाइपोसेलुलर। ये कंजेनिटल हो सकता है, ठीक है, उसमें कुछ एंजाइमेटिक क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर ये एक्वायर्ड हो सकता है, जिसमें आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, केमिकल एजेंट्स हैं, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ये भी कॉज कर सकती है। इसका इंसिडेंस वैसे लो होता है, लेकिन ये जो है वो 4 in every 1 million पर्सन ये होता है प्लास्टिक। और इसमें ये होता है कि आप रिथ्रोपोइटीन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, आपके अगर RBCs नहीं बन रहे हैं RBCs के ट्रांसफ्यूजन देते हैं, WBCs नहीं बन रहे हैं उसका आप दे दें, फिलग्रिस्टिन के नाम से आता है जो कि WBCs को जाके बनाता है, और इसी तरह प्लेटलेट के ट्रांसफ्यूजन दे दें, या फिर आप उसको रिथ्रोपोइटीन देते हैं तो वो स्टिमुलेट हो जाता है हमारा, राइट। इसकी क्लिनिकल कंडीशन वैसी हैं जैसे कि मैरो के साथ होती हैं एनीमिया, लेकिन उसके साथ साथ ब्लड लॉस, ब्लीडिंग, RBCs क्योंकि सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है, प्लेटलेट भी है, न्यूट्रोफिल्स भी हैं, तो इसलिए इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं इनमें, सो ये इसके साथ सिम्टम। ट्रीटमेंट जो है इनका वो क्या होता है एप्लास्टिक एनीमिया का? अब अगर तो कोई ऐसी कॉज है जो कि रिवर्सिबल है, फॉर एग्जांपल किसी को कोई ड्रग्स की वजह से या केमिकल की वजह से हो रहा है, आपने वो ड्रग रिमूव कर दी या हटा दी, तो चांसेस होते हैं कि पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाए।
लेकिन अगर वो और इन द मीन टाइम आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते रहते हैं ताकि उसको जो है वो उसका काम चलता रहे, तो उसको इन्फेक्शन हैं तो एंटीबायोटिक्स देते हैं। फिर कुछ जो इम्यूनोस्प्रेसेंट्स हैं जो कि जाके मैरो को स्टिमुलेट कर देती हैं, जिसमें कि न्यूओरल है, सेंडेम्यून है और कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हैं। ठीक है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। बोन मैरो के स्टिमुलेंट्स जो हैं जिनमें कि मैंने फिलग्रिस्टिम की बात की है। फिलग्रिस्टिम जो है ये न्यूपोजेन के नाम से आता है, जिसमें कि न्यूट्रोफिल्स या WBCs ये बना देता है, जाके स्टिमुलेट करता है आपके वो वाले सेल्स को जो WBCs बनाते हैं। इसी तरह पोइटिन जो है, एरिथ्रोपोइटिन जिसे हम कहते हैं, वो RBCs को जाके स्टिमुलेट करता है, RBCs के बनाने वाले सेल्स को। लेकिन अल्टीमेटली अगर सारी चीज़ें नाकाम हो गई हैं तो जो इसका सबसे ज़्यादा जिसे आप कहते हैं कि क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, दैट इज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो आप बोन मैरो ही रिप्लेस कर देते हैं उसका हेल्दी मैरो से और वो ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो अब हेमोलिसिस क्विकली, सिकल सेल डिजीज, एक्वायर्ड हेमोलिसिस, हीमोक्रोमेटोसिस, पॉलीसाइथेमिया, सो दीज आर दी हेमोलिटिक एनीमियाज। इसमें क्या होता है कि जो RBCs का डिस्ट्रक्शन रेट है वो बढ़ जाता है। इट इज़ द थर्ड मेजर कॉज, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है कि उसकी जो कॉज है वो RBCs के अंदर ही है, या उसकी सेल वॉल में मसला हो सकता है या हीमोग्लोबिन में हो सकता है। और एक्सट्रिंसिक ये है कि RBCs नॉर्मल है लेकिन बाहर से कोई चीज़ है जो कि सेल RBCs को ज़्यादा तोड़ दे। इंट्रिंसिक में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, जिसमें कि हीमोग्लोबिन सिकल सेल डिजीज जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होता है, ठीक है ना जी। इसी तरह लिप्टोसाइटोसिस है, स्फीरोसाइटोसिस है, ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है और इसकी वजह से जैसे आपके जो RBC हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं, जब वो गुजरते हैं पतली पतली जगहों से, जैसे कि कैपिलरीज हो गई, साइनोसाइट हो गए, तो ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर कुछ एंजाइम्स हैं जो कि सेल वॉल की बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसमें कि G6PD जो है, ग्लूकोनाइल 6 फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, ये एक एंजाइम है G6PD। ये अगर डेफिशिएंट हो तो फिर सेल्स जो हैं वो जल्दी से टूट जाते हैं। जैसे उनको कोई हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट मिलेगा या सर्टन ड्रग्स बॉडी के अंदर जाएंगी तो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे सेल्स। सो G6PD डेफिशिएंसीज है। फिर मेम्ब्रेन की एबनॉर्मेलिटीज़ जो मैंने बताई हैं, स्फीरोसाइटोसिस, इलिप्टोसाइटोसिस और सिकल सेल डिजीज, ठीक है। एक्सट्रिंसिक कॉजेज में RBCs नॉर्मल होते हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक फैक्टर लिवर बढ़ गया बहुत, उसके साइनोसाइट्स बहुत बड़े बड़े हो गए या वो उन्होंने ट्रैप कर लिया, स्प्लीन बढ़ गई, RBCs जो हैं वो जाके उसके अंदर जमा हो गए और ब्रेकडाउन। टॉक्सिन्स बहुत सारे ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल लेड जो है, अगर किसी को कॉन्स्टेंटली लेड से एक्सपोजर हो रहा है सो वो हेमोलिसिस उनमें हो जाता है। तो आपने पढ़ा होगा ब्यूज लाइन भी गम्स के ऊपर बन जाती हैं बिकॉज ऑफ लेड टॉक्सिसिटी, सो दैट विल कॉज हेमोलिटिक एनीमिया। इसी तरह अगर आप किसी पेशेंट के हार्ट के वेल्व्स खराब हो गए हैं और आपने मेटालिक वेल्व्स लगा दिए, तो वो मेटालिक वेल्व जब खुलते बंद होते हैं तो वो उसके ट्रॉमा की वजह से RBCs ब्रेक डाउन होते हैं। सो दैट इज द मैकेनिकल इशू। तो जब RBC का ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है, ये आपने देख लिया है कि ये RBC है, ये मैक्रोफेज जो है ये इनको खा रहा है, ठीक है ना। ये एक भालू की तरह की चीज़ है, ये RBCs हैं, ये इसको RBCs का जो हीम और ग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन पार्ट में से हीम को अलग करता है, ग्लोबिन को अलग करता है, उसमें से पोरफेरिन जो है वो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है। बिलीवर्डिन जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, और फिर वो एल्ब्यूमिन के साथ मिलकर लिवर के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनती है, जिसे कि बिलीरुबिन ग्लूकोनाइड कहते हैं, और फिर वो स्टूल बाइल में आता है और फिर स्टूल के जरिए बाहर निकल जाता है। सो दिस इज हाउ हेमोलिसिस अकर। सो एक्वायर्ड कॉज में इन्फेक्शंस हैं, मेडिकेशंस हैं, मैनिफेस्टेशन साइन सिम्टम ऑफ अनीमिया होंगे। कॉम्प्लिकेशंस में ये होता है कि एक्युमुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन ऑब्स्ट्रक्ट द रीनल ट्यूब्यूल्स और ट्यूबुलर नेक्रोसिस। याद रखना है कि मैसिव हेमोलिसिस जब भी होता है तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रीनल ट्यूब्यूल्स में जाके जमा होते हैं। पेशेंट कैन डेवलप
एक्यूट रीनल फेलियर, राइट। और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि आप कॉज को जो है वो करें, एलिमिनेट करें। सिकल सेल डिजीज़ जो है ये एक डिजीज़ है, क्विकली मैं इसको आपको बता देता हूँ कि ये इसमें जो आपके आरबीसीज हैं नॉर्मली उनका ये वाला शक्ल है, लेकिन वो ये इस तरह की द्रांति की शक्ल के हो जाते हैं, सौ की तरह के हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है ना जी। So sickle cell do not pass easily through the blood. They are stiff and sticky and tend to form clumps and get stuck into the blood vessels. Right? This is how the sickle cell disease जो है वो अफेक्ट करती है, और ये इनहेरिटेड कंडीशन है, और इसमें आपकी आरबीसीज की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अब सिकल सेल की जो साइन सिम्टम्स हैं वो ये होते हैं कि पेशेंट जो है उसको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, ये बर्थ पे प्रेजेंट होती है, लेकिन 4 मंथ की एज तक ये प्रेजेंट नहीं करती है, ठीक है। अनीमिया जो है उसमें सारे उसके फीचर्स हैं। सिकल सेल क्राइसिस क्या होता है? सिकल सेल क्राइसिस ये होता है कि आपके जो सिकल सेल्स हैं वो जाके नैरो स्पेसेस में जमा हो जाते हैं, लाइक कि आपके जॉइंट्स हैं उसके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज हैं, या आपकी कैपिलरी आरबीसी रीनल कैपिलरीज। सो क्या होता है कि सडन एपिसोड ऑफ पेन थ्रू आउट द बॉडी होती है, और इनकी जो कॉमन साइट्स है वो कहाँ होती हैं? बोन्स में, लंग्स में, एब्डोमिनल कॉलिक हो जाएगी, जॉइंट्स में, ये सारी कोलिक की पेन हो जाती है, क्योंकि कैपिलरीज जो है वो क्लॉग हो जाती हैं सिकल सेल्स की वजह से, और लैक ऑफ ब्लड फ्लो कैन कॉज पेन एंड ऑर्गन डैमेज हो सकता है। इसी कॉम्प्लिकेशंस सिकल सेल्स की, पेन एपिसोड, स्ट्रोक, इन्फेक्शन, लेग अल्सर, बोन डैमेज, येलो आई जॉन्डिस, गॉल स्टोन्स बन जाते हैं, लंग ब्लॉकेज हो जाता है, किडनी डैमेज होता है। मेल जो होते हैं उसमें प्रायप्टिज्म होता है। मेल में आपको पता है कि जो इरेक्शन है इट इज़ बिकॉज के ब्लड जो है वो जाके जो आपके जो मेल के वो होते हैं जो जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसकी जो कैपिलरीज हैं उसके अंदर ब्लड जमा हो जाता है। तो अब अगर ये वाले ब्लड के अंदर आपके सिकल सेल्स हैं तो क्या होगा कि वो ब्लड जमा तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही क्लाइमैक्स होगा तो वो इरेक्शन ख़त्म नहीं होगी, बल्कि उसको वो जमा ही रहेगा ब्लड उधर, तो उसको पेनफुल इरेक्शन होती है, इससे प्रायरिज्म कहते हैं। ये एक फीचर है इसका। फिर इस तरह रेटिनल डैमेज होता है और ग्रोथ की रिलेटेड। इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये होता है कि आप उसको फोलेट देते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर देते हैं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो और ब्लड फ्लो जारी रहे। इसी तरह आप क्राइसिस को ट्रीट करते हैं और ऑक्सीजन आप इनको देते हैं हाइपोक्सिया ताकि ना हो, डिहाइड्रेशन आप इनके अवॉइड करते हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, इनफ स्लीप और रेस्ट करें, अल्कोहल और स्मोकिंग से अवॉइड करें। सो दिस इज़ हाउ ये हेरिडिटी कॉज इसकी होती है। एक्वायर्ड कॉजेज जो हैं सॉरी ये आपके एप्लास्टिक एनीमिया वाली स्लाइड आ गई, सॉरी। अच्छा, अब सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया जो है वो एक खास टाइप का एनीमिया है जिसमें कि कॉमन डिफेक्ट है फेलियर टू यूज द आयरन इन दी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। सो आयरन जो है वो यूज नहीं हो सकता हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट। सो बेसिक डिफेक्ट ये होता है आयरन मौजूद होता है लेकिन बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर सक रही है, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ द सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया, और इसकी वजह से माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर होती है। इसका ट्रीटमेंट जो है कि रिस्पॉन्ड्स टू सेवरल वीक ट्रीटमेंट विद हाई डोज ऑफ pyridoxine. This is how we treat. So that is all about the lecture. So if you have got any question or any comment, so I would like to answer. Okay, you can just tell me in the group chat group if you have any question. So I'll let them open your mics. Any question? Okay, Manur and Maham. Okay, thank you very much, and very happy Eid
in advance to you from my side, and all of you just enjoy your Eid, and inshallah see you after Eid. Eid Mubarak to you. Allah Hafiz.